So hello, we are doing RBI Grade B. I hope the exam went well because a lot of questions were there from the PDF that we did. Appointments, MOUs, indices, report and RBI related things. But still, if it did not go that well, then there are other upcoming notifications as well, including SEBI, IBPS and so on. We'll do that as well. And even the exam was somewhere between moderate to difficult category and majorly leaning towards the difficult side. So don't worry, cutoff can be very low as well, although a lot of questions were very easy if you talk about general awareness. So here we will see the questions which were there as well as the expected question that can come in the other shifts. So very quickly we'll take this. Let's start. Under Basel III norms, which financial entities are these regulations applicable to? So applicable to scheduled commercial banks and all India financial institutions. So four options were there. One of the options was this, such as NABARD, NHB, Exim Bank, Export Import, SIDBI. Objective to strengthen capital structure and risk management in the banking sector. Then RBI stopped granting new licenses to which type of bank in 2024? Answer is UCB, that is Urban Cooperative Bank. Reason, poor governance, rising non-performing assets and dual regulation. RBI later reclassified urban cooperative banks into a four-tier structure and introduced a vision document 2025 for urban cooperative bank. Then which parameter among the following is updated daily by RBI? So weighted average call rate, ये हमने देखा था. WCR represents the overnight interbank borrowing rate and acts as the operating target for monetary policy. Published daily by RBI in its money market operations report. Next is what are the qualitative and quantitative tools used by RBI for credit control. जो हमने देखा था कि RBI किस तरीके से मैनेज करता है, किस तरीके से चलाता है इकोनॉमी को. डियर मनी पॉलिसी वगैरह हमने डिस्कस किया था कि जब पैसा घुमाना हो, ज़्यादा लाना हो मार्केट में, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट कम होंगे जिस पे बैंक को मिलेगा, रेपो कम होगा, उस वजह से बैंक कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को देंगे एंड लोग विल बाय मोर. एंड जब टाइट करना हो तब जो बैंक्स होंगे, RBI होंगे, बढ़ा देंगे इंटरेस्ट, तो बैंक्स भी बढ़ा देंगे लोगों के लिए एंड लोग लोन नहीं ले पाएंगे तो इकोनॉमी विल स्लो डाउन. एंड उसमें हमने देखा था क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स. तो क्वान्टिटेटिव टूल्स आर CRR, दैट इज़ अ कैश रिजर्व रेशियो, कितना कैश रखना पड़ेगा परसेंटेज किसी भी बैंक को एज पर RBI. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. देन व्हाट आर दी क्वालिटेटिव टूल्स? अब इसी को इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए कुछ और टूल्स हैं जो RBI यूज़ करता है, दैट इज़ मोरल सुवेजनिंग, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट राशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है? विच टूल इज़ क्वालिटेटिव और विच टूल अफेक्ट्स मनी सप्लाई डायरेक्टली. नेक्स्ट इज विच ऐप वॉज द फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट UPI ऐप टू लॉन्च द डिजिटल रुपी फीचर. आंसर इज फ़ोन पे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा था. इंटीग्रेटेड दी RBI CBDC, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. नाउ व्हाट इज CBDC भी आ सकता है डायरेक्टली, फुल फॉर्म भी, क्योंकि आए हैं फुल फॉर्म वाले भी क्वेश्चंस. एंड अराउंड 4 to 5 questions were there which were directly asking about the full form of some particular thing. Then which app among the following offers a credit line facility on UPI? Answer is Paytm, introduced after RBI's credit line on UPI framework March 2024, allowing banks to link pre-sectioned credit limits to UPI handles. Then Asian Development Bank approved a $200 million loan to which Indian organization recently? So Government of India for Urban Infrastructure Development and Sanitation Projects. कहाँ पे? उत्तराखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके लिए इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ें भी और बाकी चीज़ें भी. पर कहाँ पे? एशियन डेवलपमेंट बैंक. एंड कहाँ पे कर रहा है? उत्तराखंड में. देन इन्फोसिस रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स. आंसर इज मास्टर कार्ड. क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को ईजी कर देंगे, रेमिटेंसेस को पहुँचाने में भी ईजी रहेगा, तो इन्फोसिस कर रहा है वो मास्टर कार्ड के साथ. What are the subcomponents of quality parameter under the RBI's Financial Inclusion Index? हमने ये भी देखा था सब components. Account ownership, regulatory usage, borrowing patterns and repayment behavior, then grievance redressal system, customer trust and service, reliability, financial literacy level, weightage in FII, access 35%, usage 45, quality 20. Then 2024 में 64.2. Which sustainable development goals are not being adequately met by India due to issues in fortified rice supply? तो कौन से हैं वो? 2, दैट इज
zero hunger. 3, good health and well-being. Now rank global hunger index में is 102. Now question was related to this as well. One more question in other shift that rice का जो supply है वो दूसरी दूसरी countries में कर रहे हैं globally, तो उससे कौन से जो goals हैं उन पे कोई impact नहीं आ रहा. So when you will see the options, most of the options will be revolving around food only. So you'll get an idea कि कौन सा option होगा जो नहीं होगा. So you have to analyze also sometimes. India recently signed a trade and economic partnership agreement with which 4 members countries of the European Free Trade Association. MOU वाले में हमने देखा था आंसर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिस्टनस्टीन. वन मोर कंट्री वॉज देयर विच वॉज नॉट. ठीक है, इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. देन EFTA to invest $100 billion in India over 15 years. किस में? फार्मा, मशीनरी, सर्विस एंड सस्टेनेबिलिटी. इंडिया गेट्स इम्प्रूव मार्केट एक्सेस फॉर टेक्सटाइल, जैम्स, IT के लिए डेफिनेटली. कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर्स? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन related to headquarters were also there, so very very important. Then what is India's latest ranking in the Global Innovation Index 2025 and which countries are in the top 5? We did this as well in our indices and reports wala video. So India ranks 39th in the Global Innovation Index 2025. Top 5 countries: Switzerland, United States, Sweden, United Kingdom, Singapore. Published by WIPO, that is World Intellectual Property Organization. ठीक है, rank is 39th. Then headquarter WIPO का Geneva, Switzerland. Then who was the first Indian to win Pulitzer Prize? Answer: Gobind Bihari Lal in 1937 for journalism, along with 4 others from the San Francisco Chronicle. Recent one Indian winners 2022: Adnan Abidi, Amit Dave, Danish Siddiqui. फोटोग्राफी किस चीज़ के लिए मिलता है? कैटेगरी जर्नलिज्म, बुक, ड्रामा, म्यूजिक. कौन एडमिनिस्टर करता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, USA. नाउ इन वन ऑफ द शिफ्ट दिस वॉज द क्वेश्चन की फर्स्ट किसको मिला इंडिया में? तो गोविंद बिहारी लाल. नाउ इन नेक्स्ट इट कुड बी कि कौन से ईयर में मिला, किस रिलेटेड होता है. 22 में किसको मिला, कौन है जो एडमिनिस्टर करता है. सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस चेंज इन डिफरेंट शिफ्ट्स. सो व्हाट इज द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार स्कीम एंड विच मिनिस्ट्री लॉन्च इट? सो क्वेश्चन वॉज लाइक कि इनमें से कौन सा जो नेम ऑफ द स्कीम है इज राइट. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी श्रेष्ठ परिवार एंड so on. 4 options were there. Answer: launched by Ministry of Women and Child Development. Focus: anemia free India and women's nutrition objectives. Screening women for anemia and linkage with health services. कौन सपोर्ट कर रहा है? Ministry of Health and Family Welfare. Then National Nutrition Mission. थीम क्या है? पोषण माह 2025, हेल्दी मदर हेल्दी नेशन. Then name the all women Indian Navy team that successfully completed a वर्ल्ड नेविगेशन मिशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया था ये. आंसर: टीम तारिणी, INS तारिणी, दैट इज इंडियन नेवी शिप तारिणी. मिशन सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब, पूरा चक्कर काटना. देन टीम मेंबर्स: लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी, कैप्टन एंड 5 अदर विमेन ऑफिसर्स. 2024 में टीम तारिणी completed another trans-oceanic expedition from Goa to Rio de Janeiro and back. INS Tarini named after the Tara Tarini temple which is in Odisha. Then this question was there कि कौन सी शिप है जो कमीशन हुई September 2025 में? So that was INS Aravali. Hydrographic and oceanographic surveys for navigational charting किसने बनाया? GRSC, that is Garden Ridge Shipbuilders and Engineers, कोलकाता. Other such ships: INS संध्याक, INS निर्देशक, INS निरूपक. कहाँ पे कमीशन किया? गुड़गांव, हरियाणा. So question can be related to ships as well. Then headquarters of the Geological Survey of India, directly headquarters पूछा, that's why we have taken headquarters of WIPO and other such organizations. So कहाँ पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल कब फाउंड हुआ? 1851 में. अब इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हो जाती हैं इंपॉर्टेंट क्योंकि ये दे दिया 1851 में. वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर. मोटो इज टू एक्सप्लोर एंड एसेस मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. Then questions can be related to this. When was ISRO established? Where is the headquarters and who is the current chairman? So established in 1969, headquarters Bangalore, Karnataka. Current chairman is, he is the former, current is V. Narayanan.
पहले किस नाम से बना था? INCOSPAR, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, 1962 में। दैन 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट मिशन। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल। आदित्य L1 सोलर मिशन है ये। देन गगनयान अपकमिंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इन द नेक्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन फर्स्ट इट वॉज रिलेटेड टू इसरो, इन सेकेंड इट वॉज रिलेटेड टू विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। Then under which ministries has Piyush Goyal served as a cabinet minister? Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ministry of Textiles. Formerly also handled railway and coal portfolios. Then very important GI question. Vallabhbhai Patel was given the title of Sardar for which of the following reasons? So क्या आंसर था? बरदोली सत्याग्रह। So the title Sardar was given to Vallabhbhai Patel after his leadership in बरदोली सत्याग्रह। अब कब हुआ था? ये वाली चीज़ें याद रख लेते हैं, दैट इज़ 1928। नॉन कोऑपरेशन 1922। एंड क्यों किया था? चोरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ उसकी वजह से। ठीक है, आग लगा दी थी जो पुलिस स्टेशन था, तो गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था उससे। द पीजेंट्स ऑफ बरदोली गुजरात कन्फर्ड द टाइटल इन ग्रेटिट्यूड फॉर हिज लीडरशिप अगेंस्ट अनजस्ट टैक्सेशन। अभी कौन था इस टाइम वाइसरॉय? लॉर्ड इरविन। कुछ चीज़ें अब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इनसे रिलेटेड, दैट इज़ इनका स्टैचू क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है वो इनका, क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे? केवड़िया, गुजरात। वेयर इज स्टैचू ऑफ बिलीफ? इट कैन ऑल्सो कम। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच रिवर विद इट्स कॉन्टिनेंट्स। सो अराउंड 5 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वेरी बेसिक and mostly match the following, so you can easily eliminate the options. So all of these rivers were given and your job was to match it. So Nile is in obviously Africa, Amazon South America, Mississippi Missouri दोनों कहाँ हैं? नॉर्थ अमेरिका। देन यांगत्से एशिया, चाइना में पढ़ा होगा आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यांगत्से रिवर। इनका साइज़ का आता है तो डिस्चार्ज के मामले में बहुत ज़्यादा वाइड है अमेजोन ना, तो अमेजोन इज हैज़ दी हाइएस्ट डिस्चार्ज। बट इफ़ वी टॉक अबाउट दी length, then longest is Nile. Then which of the following mountains is not located in the same country as the other? So this was the odd one out question, आपको सेलेक्ट करना था कौन सा जो पर्टिकुलर माउंटेन है वो कहीं और है बाकी एक जगह है। सो द ऑप्शंस वर माउंट एवरेस्ट, अन्नाई मोदी, नंदा देवी, कंचनजुंगा। सो द आंसर इज ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट। अन्नाई मोदी कहाँ पे है? साउथ में, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, साउथ में है अन्नाईमुदी। देन नंदा देवी ऊपर, जहाँ पे बैन है, हम बोलते हैं कि प्लूटोनियम वगैरह है नीचे। प्लूटोनियम वगैरह की रिसर्च के टाइम पे वहाँ पे रह गया था कुछ मिसहैप की वजह से। नंदा देवी जो पीक है टफ भी है, वहाँ पे जाना वैसे अलाउड भी नहीं है, बेस कैंप तक यू कैन गो नंदा देवी, तो इट इज़ इन इंडिया ओनली, उत्तराखंड। देन कंचनजंगा सिक्किम। सो जो पूरा इंडिपेंडेंटली नेपाल में है दैट इज़ आर माउंट एवरेस्ट। सो नाउ इन द नेक्स्ट शिफ्ट इट कुड बी रिलेटेड टू सम अदर, आपको माउंटेन्स का नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल ईस्टर्न घाट का कुछ दे दिया, जिवादी, शिवराय, बालाकोंडा एंड सो ऑन। देन Olympus Mons, the largest volcano in the solar system, is located on which planet? So the options were Mars, Jupiter, Venus and so on. Answer is Mars. ठीक है, नियरली क्या साइज है? 2.5 टाइम्स ऑफ माउंट एवरेस्ट। टाइप क्या है? शील्ड वॉल्केनो। अब टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ कौन सा है? ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट। टॉलेस्ट माउंटेन ऑन वीनस, मैक्सवेल माउंटेन्स। कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए वी आर टेकिंग सम ऑफ द रिलेटेड थिंग एज वेल। सो वन मोर फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन। सो दिस वॉज डायरेक्टली गिवन कि S3WAAS में तो जो S है उसका मीनिंग इनमें से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शंस वर गिवन। सो क्या क्या है? सिक्योर, स्केलेबल, सुगम्य, वेबसाइट एज अ सर्विस। सो AAS से एज अ सर्विस तो यू मस्ट बी वेरी श्योर, बाकी से आपको देखना है। सो यू कैन समटाइम्स सॉल्व द आंसर बाय थिंकिंग एनालिटिकली एज वेल एंड देन यू कैन मेक अ वाइल्ड गेस, बट इट शुड नॉट बी वेरी वाइल्ड। Then it is a platform developed by National Informatics Center NIC for creating standardized, accessible and secure government websites. क्या है? मैनेज अंडर MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म वाला भी आ सकता है। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमने स्ट्रीट वेंडर्स, आत्मनिर्भर निधि पढ़ा था, ठीक है, एंड सो ऑन, जो स्कीम्स हैं उनके भी
full form are very important. Then we'll take other questions as well in the next, as I have to put more questions in it. So if you have any other doubt, you can comment. That's it. All the best and thank you.